Yes, very good morning, everyone. So we have to know about few functions of MS Excel. Okay, if you have the book, then you should open page number. Let me share the screen. So just a minute. Okay. Well, so you can see. Uh, okay, from where you need to know. Just a minute. Okay. So there are a few functions in MS Excel which are very important to know, and there will be questions on those functions. So be careful. We have come to know like some function we have come to know. So today I will tell you some more functions and watch this very carefully, and if you have computer or laptop, so please do the practice. Clear? If you do the practice, then it will be very easy to understand and to remember. ठीक है, याद रखना भी easy हो जाएगा आप लोगों के लिए. So let us see which functions we have to know. Functions are like so from here we need to know some function I have already told you. ठीक है, add करने के लिए है और कुछ नहीं. Clear? It is used to add values. Or if you want to see again, then I can of course show you. Okay. So let me open MS Excel. We created a file. I'm not getting that file right now. Okay, lib. So well, let me prepare something here. So first of all, suppose I'm going to prepare a mark sheet. Okay, so name of the student. Okay, then marks of each subject like Hindi, English, science, social science. Okay, then total and percentage. Okay, so you can see that name of the student, it is not completely visible. So that what you have to do, you have to increase the width of the column. तो मुझे क्या करना है, A और B के बीच में कर्सर ले जाओ, then you have to drag it. So as you drag it, so the cell width will be increased. Okay, got it? Well, so now you can enter name. Okay. So this how we can do. So let me enter the marks. Is that? Yeah. Yes, Ishika, you want to say something? Okay. Yeah, so let me continue then. Aman का marks हमने भर दिया है. Now let me fill Akash marks. Okay. Then Suman's marks. Let me fill it. Okay. So this in this way we can prepare a table. Okay, this is called table,
And if you can remember, I told you that if you want to see the border, ठीक है, इसमें border बहुत light है. If you want to see the border of the table, so you should click here. Select table को select करने के बाद यहाँ पर border में आके all borders पे click करोगे तो एक dark border दिखेगा, ठीक है. Well, now total, how to get the total value? Of course we have to use sum function. So what you have to do, you have to use is equal to, है ना, जहां भी टोटल निकालना है उस सेल पे क्लिक करके e इज इक्वल टू लिखने के बाद एसयूएम सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद आपको माउस पॉइंटर के यूज से जहां से जहां तक भी टोटल करना है उसको लिख देना है, सॉरी आई मीन सिलेक्ट करना है. So if you select the range, so of course you will see the cell range B3 to F3. Now enter. Okay, so total marks 306. You can drag it to get the total of other students. Now percentage, how to get the percentage? Very simple. There are two ways to get the percentage. First, you divide the total by 5, or you can do like another way. The simple way is like if you divide the total value by 5, because there are 5 subjects: English, Hindi, Math, Science, Social Science. So we get the percentage. Actually it is average. If you do like this way, मतलब ऐसा भी किया जा सकता है इसको परसेंटेज निकालने के लिए 306 into 100 upon 500. Clear? That can also be done. तो भी 61.2 ही आएगा, ठीक है. तो एज यू लाइक, जो भी आपको करना है, ठीक है. सो परसेंटेज आ गया, देन यू हैव टू ड्रैग इट. ओके, नाउ सपोज आपको ये पता करना है कि हिंदी में एवरेज मार्क्स कितना है, इंग्लिश में एवरेज मार्क्स कितना है. सो हाउ यू विल डू? वेरी सिंपल. सपोज मुझे पता करना है कि हिंदी में एवरेज कितना है. सो लेट मी राइट हियर. सो what we have to do, we have to use average function, ठीक है, is equal to RAGE, एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट ब्रैकेट, देन यू हैव टू सिलेक्ट द सेल रेंज, ठीक है. जिसका भी एवरेज, जितने का एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दो और एंटर कर दो. तो इन हिंदी का एवरेज जो है वो सबसे ज्यादा है 58.667. देन यू इफ यू ड्रैग इट, अगर इसे आप ड्रैग करोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट का एवरेज शो होने लगेगा. नाउ वन थिंग यू कैन सी दैट डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस वैल्यू है. अगर आपको इसको डिक्रीज करना है, इफ यू वांट टू डिक्रीज, सपोज यू वांट टू गिव ओनली 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, देन हाउ टू डू इट? इसको रिड्यूस करना है, ठीक है. मतलब 58 के बाद 6667 है, सो हमें ऐसा चाहिए कि 58.66 तक ही आए. तो क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट, ठीक है, डेटा को सिलेक्ट करना है. देन इफ यू पे फोकस दैट हियर यू विल फाइंड ये जो नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है होम टैब में ही, है ना. होम टैब में ये जो डेसिमल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज डेसिमल और उसके बगल में इंक्रीज डेसिमल. तो हमें डिक्रीज करना है. इफ यू क्लिक ऑन दिस, सो यू विल फाइंड कि डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है ना. नाउ इट लुक्स गुड. अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था. सो ये था एवरेज फंक्शन. फर्स्ट फिर से एक बार देख लो एवरेज कैसे निकालना है. वेरी सिंपल, इज इक्वल टू लिखना है, उसके बाद एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद माउस पॉइंटर के यूज करके आपको सिलेक्ट करना है सेल रेंज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है. ओके, नाउ आगे देखते हैं कौन सा फंक्शन हमको समझना है. ये आपने एवरेज भी समझ लिया, सम भी समझ लिया आपने. इसके बाद अगला फंक्शन है काउंट. काउंट मतलब होता है गिनना, है ना.
काउंट का मतलब गिनना होता है। तो एक्सेल में क्या गिन सकते हैं? सपोज आप चाहते हो कि यहाँ से लेकर ये अमन के हिंदी मार्क्स से लेकर सुमन के सोशल साइंस मार्क्स तक कितने वैल्यूज है यहाँ। इफ यू वांट टू काउंट देन यू हैव टू यूज काउंट फंक्शन। बाय द वे, अगर आप एकदम नीचे ध्यान दोगे, मेरा माउस पॉइंटर जहां घूम रहा है यहाँ पर काउंट बताता है 15, मतलब ये स्टेटस बार में ऑटोमेटिक शो होता है। अगर आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है, एक्सेल में डिस्प्ले करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल, इज इक्वल टू ओपन करो, उसके बाद लिखो काउंट, फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद जहां से जहां तक का वैल्यू आपको काउंट करना है उसको सिलेक्ट कर दो, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर, तो वैल्यू आ गया 15। तो दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया उसमें 15 वैल्यू है, ठीक है। बहुत सिंपल फंक्शन है। काउंट के बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैक्स, और मैक्स का ऑपोजिट है मिन। तो मैक्स का मतलब क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू वी मीन बाय मैक्स? जल्दी से बता दो। मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अगर आपको हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, सो यू शुड यूज मैक्स फंक्शन। तो क्या करना है, इज इक्वल टू, देन यू हैव टू राइट मैक्स, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर मैं हिंदी में कर दिया, मतलब हिंदी का सेल रेंज दे दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद एंटर। तो यस, ऑफ कोर्स आंसर सही आया है क्योंकि यहाँ पर 75 सबसे ज्यादा है। अभी इसे मैं ड्रैग कर देता हूँ पता करने के लिए सबका सही सही बता रहे कि नहीं। यस, सारे सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स सही बता रहे हैं। उसी का ऑपोजिट क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो अगर आपको मिनिमम मार्क्स ढूंढना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मीन, ठीक है। तो तरीका वही है, MIN, मीन लिखना है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सेल रेंज को सिलेक्ट कर दो और एंटर। तो ये मिल गया हमें मिनिमम मार्क्स, और उसे ड्रैग कर दो। और मजे की बात ये है कि अगर यहाँ पर चेंज भी होता है, सपोज ये 80 हो गया तो नीचे भी देखना ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर मान लो इसको सुमन को हिंदी में सपोज 5 मिला है तो ऑटोमेटिक यहाँ भी चेंज हो जाता है। तो यही फायदा है एक्सेल में काम करने का, ठीक है। ओके, तो ये था मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन। उसके बाद एक फंक्शन है टुडे। टुडे लिख के एंटर करोगे तो आज का डेट आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ जानना है आज का डे क्या है, हालांकि उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। टुडे लिखना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर दबा दो तो आज का डेट बताएगा। आज का डेट जो है 23 तारीख दूसरा महीना, ठीक है। नॉट सो यूजफुल। हाँ, ये वाला फंक्शन मैं एक बार शुरू किया था, अगर किसी को याद होगा तो, इफ फंक्शन। कैन एनीबडी टेल मी, इफ फंक्शन का यूज करके हमने कुछ किया था, याद करो। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कुछ याद आ रहा है किसी को? शायद तक नहीं आ ये रहा। तो आपने कुछ लोगों का नाम यस लिखा, सर। फिर बाजू में स्टेट लिखा, उसका सिटी लिखा कहाँ से बिलोंग करता है वो, और हाँ डाला आपने ए देन ट्रू, इफ ये फॉल्स, ऐसा कुछ था। हाँ, करेक्ट। सो इफ फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है MS एक्सेल का, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये जो अपने मार्कशीट एनालिसिस कर रहे हैं, इसके ऊपर हम इफ फंक्शन क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, सपोज ये परसेंटेज जो आया, ठीक है, परसेंटेज के ऊपर हम इफ फंक्शन लगा सकते हैं। अगर मान लो किसी का परसेंटेज जो है वो 33 से कम हो गया तो वो क्या कहलाएगा, फेल, है ना। तो जैसे कि मैंने सुमन का मार्क्स बहुत कम कर दिया, एज यू कैन सी उनका परसेंटेज जो है वो एकदम बिलो हो गया, 33% हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं सेल को थोड़ा सा सजा रहा हूँ, मतलब टेबल को फॉर्मेटिंग आप लोग भी कर सकते हो। ओके, सो नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर सुमन को बहुत कम मिला है, ठीक है।
तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमें ऐसा डिस्प्ले हो जाए कि जो 30% से नीचे वो फेल है और 30%, 33%, सॉरी 33% से ऊपर है वो पास, 33 से नीचे फेल। तो उससे कैसे करना है ध्यान से देख लो एक बार। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना है, देन यू हैव टू अप्लाई इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक। ब्रैकेट ओपन करने के बाद कंडीशन देना है, व्हाट इज द कंडीशन। सो वी नो दैट कि above 33 पास, below 33 फेल। सो और पास फेल जो हम लोग कर रहे हैं किस पे, परसेंटेज के ऊपर, तो ठीक है। इफ लिखने के बाद परसेंटेज पे क्लिक करना है तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। इफ H3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, ठीक। मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू का मतलब क्या होगा, या तो H3 का वैल्यू 33 हो या उससे ज्यादा, तो क्या कहलाएगा, पास। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। कंडीशन होने के बाद हमें देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको जो मैसेज डिस्प्ले कराना है वो, ठीक है। तो H3 का वैल्यू अगर 33 से ऊपर और बराबर होता है तो मैसेज आएगा पास, और अगर नहीं हुआ तो फेल। तो उसको भी यही लिखना है, कॉमा डाल के ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है फेल। हमेशा याद रखना जब कोई टेक्स्ट शो करना हो तो उसे हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना। यहाँ पास फेल को डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना, ठीक। तो ये हो गया हमारा इफ कंडीशन। ये तो छोटा सा एक कंडीशन है, कई बार कंडीशन ज्यादा हो जाता है तो हमें बहुत सारा इफ एक साथ यूज करना पड़ता है, जिसे हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं। लेट मी सी, अगर नेस्टेड इफ आपके बुक में है तो मैं बता दूंगा। सो नाउ इफ आई प्रेस एंटर, सो ऑफ कोर्स पास विल बी देयर बिकॉज यहाँ परसेंटेज कितना है 62.2, लेकिन जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, फेल, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है वो 33 से कम है, ठीक है। सो दिस इज इफ फंक्शन। अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। यस, एनीबडी? नो डाउट, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इफ फंक्शन से हम लोग कैलकुलेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू कैन रिमेम्बर, जो नेम सिटी सैलरी वाला एक बार हम लोगों ने फाइल बनाया था, एक मिनट, लेट मी सी, अगर वो यहाँ है तो रिसेंट फाइल, हाँ, यस, आई हैव गॉट इट। सो यहाँ पर देखो, ये देख के याद आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर पीएफ के लिए कंडीशन था रायपुर वालों को 5% सैलरी और दूसरे शहर वालों को 7% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया था कंडीशन। ओके, किसी भी सेल का अगर फॉर्मूला को देखना है, ये पीएफ के अंदर क्या फॉर्मूला लगा है, अगर वो देखना है तो यहाँ डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक। या फिर आप उस सेल में क्लिक करके यहाँ भी देख सकते हो, जिसे हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। उस फॉर्मूला बार में भी वो फॉर्मूला डिस्प्ले होता है, ठीक, क्लियर? ओके, और डबल क्लिक करने से भी आ जाता है। सो सी, यहाँ पर हम लोगों ने इफ फंक्शन का यूज किया था कि अगर सिटी रायपुर हुआ तो सैलरी का 5% पीएफ, और नहीं हुआ तो 7%, मतलब बिना रायपुर वालों को 7%। चलो ठीक है, तो आई थिंक इफ याद आ गया होगा। लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, सर आप कॉमा डाले हो इफ रायपुर, हाँ सर आप V2 करके लिखियो D2 इंटू 5%, और हाँ फिर बाद में D2 इंटू 7% लिखियो, तो समझेगा कैसे कि कौन से में 7 लिखना है, कौन से में 5? हाँ। सो ये जो पहला वाला कैलकुलेशन है, ठीक है, कौन सा वाला, D2 इंटू 5%,
ये अप्लाई तभी होगा जब कंडीशन के साथ मैच होगा। कंप्यूटर ये पहले वाले कैलकुलेशन को कब अप्लाई करेगा? जब कंप्यूटर देखेगा कि C2 में क्या है, रायपुर, ठीक, और अगर उसे C2 में रायपुर नहीं दिखेगा, कुछ और सिटी दिखेगा, तो उसे वो क्या देगा? 7%। तो ये दोनों कैलकुलेशन में से कोई एक ही कैलकुलेशन अप्लाई होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ये वाला कंडीशन C2 रायपुर। जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पर सिटी क्या है? रायपुर है। अमन के लिए क्या है? सिटी रायपुर है, इसीलिए उसे 5% दे दिया। लेकिन जैसे अमित में आया तो वहां पता चला सिटी भिलाई है, तो इसीलिए उसे 7% दे दिया। ठीक है। ओके सर। अगर मैं इसको रायपुर कर दूं, सपोज अमित के सिटी को मैं अगर रायपुर कर देता हूं, तो तुरंत देखना वहां हो जाएगा 5%, क्योंकि कंडीशन मैच हो गया, सिटी रायपुर हो गया। अच्छा, और एक बात इसमें ऐसा है कि अगर स्पेलिंग में थोड़ा भी चेंजेस हुआ, अब सपोज कि रायपुर में 2 R लग गया, तो कंप्यूटर उतना नहीं समझता है, ठीक है ना वहां वो 7 आ जाएगा, ठीक। तो इतना मतलब कंप्यूटर के पास AI अभी आया नहीं है, AI आ जाएगा तो आई थिंक उस टाइम वो समझ लेगा कि हाँ यहाँ गलती से डबल R हो गया, ठीक है। तो एक हल्का सा भी चेंज अगर रायपुर में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? PF चेंज हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? यस सर। ओके, वेरी गुड। ऐसे सवाल पूछना तो अच्छा लगता है, बाकी लोग को पूछ ही नहीं रहे हैं। सबको समझ में आ जा रहा है क्या? तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अगर किसी को किसी फंक्शन में डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद जो आता है सॉर्टिंग और फिल्टर, वो भी देख लो क्या है, ठीक है। यहाँ पर नेम जो है अमन, अमित, आकाश, ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आकाश को पहले आना चाहिए। तो इसे सॉर्ट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देख लो। First, what you have to do, you have to select the names, then you have to go here. यहाँ पर दिखा होगा होम टैब में ही सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर, इसमें क्लिक करो। देन यू विल फाइंड बोथ द ऑप्शंस A to Z एंड Z to A। A to Z मतलब असेंडिंग, Z to A मतलब डिसेंडिंग। तो A to Z में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सिर्फ नेम वाले कॉलम को करना है कि बाकी कॉलम को भी करना है। तो अगर मैं सिर्फ नेम वाले कॉलम को करूंगा तो नाम बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, बट सिटी, सैलरी, बोनस ये सब चेंज नहीं होगा, जो कि गलत है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, expand the selection or continue with the current selection. If I choose the second option and click on sort, अगर मैं sort पे क्लिक करता हूं तो ध्यान से देखना, सिटी, सैलरी, बोनस, TADM में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। रेडी? तो ये मैं क्लिक किया सॉर्ट पे, तो देखो आकाश आ गया ऊपर, लेकिन क्या ये आकाश का डिटेल है? नो, ये तो दूसरे का डिटेल था, है ना। इसीलिए सॉर्टिंग करते टाइम मैं इसे वापस कंट्रोल Z दबा के वापस कर देता हूं। तो जब आप सॉर्टिंग करते हो तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप नेम को सॉर्टिंग कर रहे हो तो उसे एक्सपैंड द सिलेक्शन पे ही क्लिक करना है, ताकि वो डेटा गड़बड़ ना हो, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, आकाश का सिटी रायपुर ही है ना। और सैलरी को एक मिनट थोड़ा सा चेंज इसमें रखते हैं। सपोज आकाश का सैलरी 12,000 कर दिया मैं, ठीक है, ताकि हमें चेंज दिखे, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है। ओके, इसका हम 1500 कर देते हैं, इसका 6000। तो मैं सैलरी को बदल दिया ताकि हमें पता चल जाए कि नाम ऊपर नीचे ठीक से हो रहा है कि नहीं। सो अमन, अमित, आकाश, अमृता सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद सॉर्ट A to Z, देन दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सपैंड द सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट, जैसे मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो यू कैन सी
जो जिसका डेटा है वही रह गया है ना। आकाश का 12,000, अमन का 80,000, अमित का 1500, अमृता का 6,000। क्लियर? सो दैट यू नीड टू टेक केयर। ये सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद एक फिल्टर आता है। फिल्टर में क्या है, फिल्टर का यूज बहुत अच्छी यूज है उसका। अब यहाँ पर सिटी आपको दिख रहा होगा, रायपुर। रायपुर में एक भिलाई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी तो फिलहाल 4 ही लोगों का नाम है। ओनली 4 people are there. Suppose you have created a database and in that database 100 of employees are there, मतलब 100, 200 या 500 employees हैं। अब आपको बोला गया कि सिर्फ रायपुर वाले लोगों का प्रिंट आउट निकाल के दो मुझे, तो तुम क्या करोगे? एक एक करके ढूंढ के उसको हटाओगे? नो, वो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज फिल्टर, ठीक है। फिल्टर का यूज करने के लिए क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट वाला रो है उसे सिलेक्ट करो, ठीक। यहां से लेकर सिलेक्ट से लेकर पूरा सिलेक्ट करोगे तो भी, मतलब नहीं करोगे तो भी चलेगा। इफ यू क्लिक ऑन सिटी, आपको बोला गया कि रायपुर वालों को, जो एम्प्लॉय है रायपुर वाले, उनका प्रिंट आउट निकाल दो। तो व्हाट वी कैन डू कि आप सिटी पे क्लिक करो, देन यू क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में आपको मिलेगा ये ऑप्शन फिल्टर, दिख रहा होगा सभी को। फॉन्ट छोटा है, दिख रहा है ना? एक बार रिस्पॉन्स दे दो भाई, कैन यू? Yes, sir. Okay, Yes, sir. yes, okay, good. So you have to click on filter. तो जैसे आप फिल्टर में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक सेल में कॉर्नर में एक एरो बटन आ गया। इस एरो बटन से ही फिल्टर करना है हमें, ठीक। तो ध्यान से देखते रहो। So what I have told you to find out to take print out of the employees who who live in रायपुर, जिनका सिटी रायपुर है। तो व्हाट आई हैव टू डू नाउ, सिटी पे गए, उसके बाद इस एरो पे क्लिक करो, ठीक है। जो एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिल्टर करने के लिए ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, मतलब सारे सिटी वालों को दिखाएगा, लेकिन मुझे देखना क्या है, रायपुर वालों को सिर्फ देखना है। तो मैं सिलेक्ट ऑल में दोबारा क्लिक करूंगा तो सब सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं किस में क्लिक किया? रायपुर में, ठीक। रायपुर में क्लिक करने के बाद ओके। तो जैसे मैं ओके किया तो आपको डिफरेंस दिख गया होगा कि बाकी 2 लोग हाइड हो गए। नाउ व्हाट यू कैन डू कि ये एरिया को सिलेक्ट करो और प्रिंट दे दो, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। अब वापस से सभी सिटी को लाना है ना। तो क्या करना है, वही है, सेम प्रोसेस है। यू हैव टू क्लिक हियर, देन क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल। क्लियर? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 2 सिटी का देखना चाहते हो, सपोज यू वांट टू सी भिलाई एंड रायपुर, दैट यू कैन आल्सो डू, नो प्रॉब्लम। भिलाई और रायपुर को सिलेक्ट करो, उसके बाद ओके कर दो। तो यहाँ पर बिलासपुर को हाइड कर दिया, ठीक है। वो हाइड है, डिलीट नहीं हुआ है। क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? टेल मी, एक बार बता दो, क्लियर है तो? Yes, sir. सर क्लियर है। ओके सर हाँ बेटा। सर आपने जो असेंडिंग ऑर्डर वाला किया वो सॉर्ट वाले ऑप्शन से कर सकते हैं? ये फिल्टर और सॉर्ट डिफरेंट है। सर फिल्टर नहीं सर, आपने किया ना असेंडिंग ऑर्डर, हाँ, आकाश को ऊपर डाल दिया। उसमें ऐसा होगा कि सपोज अगर आप पहले रायपुर सिटी, या मतलब पहले भिलाई फिर रायपुर, ऐसा अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हो तो यस यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। आप सिटी को सिलेक्ट कर लो, फिर सॉर्ट में जाके A to Z कर दो, और हमेशा याद रखना एक्सपैंड द सिलेक्शन को ही सिलेक्ट रखना है, उसके बाद सॉर्ट। सो नाउ यू कैन सी कि भिलाई ऊपर आ गया, बिलासपुर आ गया, फिर रायपुर, जितने भी रायपुर आएंगे रायपुर वाले आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सीरियल नंबर जो है वो बार बार चेंज होगा। नाउ यू कैन सी द सीरियल नंबर 2413, ठीक है। तो सीरियल नंबर तो खैर कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यस, तो हरित का ये भी पॉइंट ठीक था कि अगर हमें ऐसा भी करने से, मतलब सेम टाइप के सिटी एक लाइन में आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो ट्रू। यस
यस, एनीथिंग एल्स माय डियर स्टूडेंट्स टिल नाउ? और ये अभी इसमें जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, आई होप आप सभी को याद है। टोटल सैलरी में क्या करना है एक बार बताओ जरा, व्हाट आई हैव टू डू फॉर टोटल सैलरी? देखता हूँ किसको याद है। सर सम। हाँ, किसका किसका सम करना है? सैलरी भी आपके मतलब सैलरी बोनस टी ये आपको दिया जाता है ना? तो ये सब क्या होगा? ऐड है, ठीक है? तो सम में सैलरी बोनस टी ये तीनों को ऐड करना है और उसका बाद एंटर दबाना है, ठीक है? और नेट सैलरी में क्या होता है? पीएफ जो है वो आपके सैलरी से कटता है, माइनस होता है। सो व्हाट आई हैव टू डू? I have to do just put is equal to, then I have to click on total salary and minus PF. I have to click कर दूंगा तो काम हो जाएगा, उसके बाद एंटर। बहुत सैलरी है इसका तो, अमन का। अरे बाकी लोगों का माइनस में क्यों आ गया? G2H2, अच्छा टोटल सैलरी तो इन लोग का आया नहीं। ओके, हाँ, yes, any doubt? We have 3 minutes more. So these are the important things about Excel. और भी दो चार जो important चीजें हैं, of course I will tell you, ठीक है? एक छोटा सा देख लो कि अगर आपको इस हमारा मार्कशीट कहाँ गया? मार्कशीट, हाँ ये है मार्कशीट। सपोज इसका एक चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देख लो एक बार, ठीक है? फटाफट देख लो, बहुत सिंपल है। सो यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल, ठीक है? टोटल को नहीं लेते हैं हम लोग, सब्जेक्ट तक लिए, ठीक है? हम लोग सब्जेक्ट का एक बार ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट से लेकर सोशल साइंस के आखिरी मार्क्स तक सिलेक्ट कर लो, ओके? देन यू क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू। इन इंसर्ट मेन्यू यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ चार्ट। तो मुझे सपोज कॉलम वाला चार्ट बनाना है, सो आई विल क्लिक ऑन कॉलम। सो हियर यू विल फाइंड different designs. You choose which one you like. सपोज मैं अभी फर्स्ट वाला ही ले रहा हूँ, सो आई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, सो द चार्ट विल बी प्रिपेयर्ड। बहुत सिंपल है, इसे आप रिसाइज भी कर सकते हो, यू कैन मेक इट स्मॉल और लार्ज। नाउ दिस चार्ट विल हेल्प अस कि भाई हिंदी में कितना कितना मार्क्स गया, इंग्लिश में, मैथ में, सोशल साइंस में। यहाँ पर कलर जो है, कलर नाम पे यूज किया गया है। अमन के लिए ब्लू कलर, आकाश के लिए रेड कलर और सुमन के लिए ग्रीन कलर, ठीक है? तो हम बता सकते हैं ग्राफ को देखकर कि सबसे कम मार्क्स किसको मिला है, सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला है ना? सो दिस इज द वे टू अप्लाई चार्ट। सर यस बेटा। सर आप इस चैप्टर का नोट्स अपलोड कर देना ना। नोट्स बेटा आपको बुक से बनाना होगा इसका नोट्स, क्योंकि ये पूरा सर प्रैक्टिकल, पूरा चार्ट अगर पूरा बनाना है, एक्चुअली पूरा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है। जो मैंने अभी पढ़ाया ना, एक बार रिकॉर्डेड लाइव क्लास को भी देख लो, जो भी मैंने पढ़ाया है उस सबका नोट्स बना लो। और एक पीपीटी है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें पूरा एक्सेल का नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? तो बेटर उसको ये पूरा रहेगा कि आप बुक से नोट्स बना लो जो भी पढ़ाया गया है अभी सर तक। हाँ बेटा। स्टेप बाय स्टेप बनाने अगर या नोट्स नहीं बनाएंगे शॉर्ट चलेगा? में चलेगा? हाँ, फिर से एक एक करके क्या बोले गौरव? सर स्टेप बाय स्टेप बनाने पूरा प्रोसेस में या एकदम शॉर्ट में चलेगा? नहीं, स्टेप बाय स्टेप बनाओ। बुक को देखो, बुक को सामने रखो और जो पॉइंट मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स बना दो।